है. So you have entered, right? Your age must be 13, 14 years, right? So all of you, yes, Aristotle, students here, सीधे. So you have entered in the age of adolescence. So what is actually adolescence? Adolescence means some major changes which occurs in the body, which prepares your body, for the growth of the reproductive organs, right? Prepares the body for reproduction, not reproduction at this age, but it starts preparing your body for reproduction, and it takes time to prepare the body, completely. So many changes. अभी तक क्या था? अभी तक हम सिर्फ ग्रोथ में बड़े हो रहे थे. ग्रोथ में इन द सेंस हमारी हाइट थोड़ी इंक्रीज हो रही थी, है ना. हमारा ब्रेन इंक्रीज हो रहा था, हमारे थोड़े से नर्व्स का साइज इंक्रीज हो रहा था. सो growth was occurring up till this age. At this age, at the puberty, the growth of the body, right, it slows down. But what is speeded up? The growth of the reproductive organs, they are speeded up, right, during this adolescence age. And this maturation of sex organs, preparation of the body for reproduction, is called as puberty, right? adolescent होता है ये एज, ये लाइफ का ये जो स्पैन है. प्यूबर्टी मीन्स जब शुरू हो जाती है मैचुरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, इट इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी, राइट. ठीक है जी. चलिए अब हम देखते हैं कि प्यूबर्टी, हाउ कैन वी से, है ना, हम कैसे देखेंगे, बाहर से कैसे पता चलेगा कि प्यूबर्टी, द चाइल्ड हैज अटेन्ड प्यूबर्टी. बिकॉज द एज फॉर प्यूबर्टी रेंजेस फ्रॉम, जो आपकी बुक्स में लिखा है, that is 12 to 14 years. But nowadays, due to social awareness, due to good diet, but due to lot of pollution and all that, puberty has reached early. बेटा इमर्सन बॉयज, इधर सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो. ये क्या तुम मेले में बैठे हो? सीधे होके बैठो. सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली. बेटे बैठ जा, बैठ जा बच्चे. ठीक है. सिट एज यू सिट इन द क्लास. So what are the signs which shows that a child has entered in adolescence? Child has started puberty, right? Reached at the age of puberty, right? What are those signs? The first sign जो commonly लड़के लड़कियों में दोनों में नजर आता है, that is there is growth of body hair. बच्चे जो होते हैं, बॉडी हेयर बच्चों में भी है, इधर ध्यान से सुनना है. वो आई विल टेल यू दोस थिंग्स विच आर नॉट गिवन इन योर बुक, बट यू मस्ट बी एंशियस टू नो दैट थिंग्स, कि ऐसा क्यों होता है. तो आई विल टेल दैट थिंग, राइट. सो what are the external signs which shows that a child has reached puberty? A child of about, like, say 6 years, 7 years, the child has hair, but the hair on the body of the child, they are very thin and they are very soft, small and thin hair. But at puberty, there is growth of thick hair on the body. ठीक है. ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर इन बॉयज, बॉयज में दाढ़ी मूछ आनी शुरू हो जाती है, मुस्टैचेस एंड बियर्ड आनी शुरू हो जाती है. ठीक है. देयर इज चेंज इन द वॉइस ऑफ मेल्स, गर्ल्स की वैसी ही रहती है, बट बॉयज की वॉइस में चेंज आ जाता है, डीप वॉइस हो जाती है, भारी आवाज हो जाती है. देन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, there occurs pimples on the face, right? Pimples हाथ पे नहीं आते, पांव पे नहीं आते, टांगों में नहीं आते, but where they are, neck पे है, forehead पे है, face पे है. Pimples or severe pimples are called as acne, right? There is sudden increase in the height and then the height stops, increase in height stops. Puberty के time एकदम height जो है
इंक्रीज होती है और उसके बाद रुक जाती है. व्हाई देयर अकर्स इंक्रीज इन हाइट एट प्यूबर्टी. अलेजेंड्रो बॉयज बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ. ठीक है. ये चीजें ना तो कहीं से पता चलेंगी, ना आप ढूंढेंगे और ना बुक्स में है. सो प्लीज लिसन टू मी. कोई फर्क नहीं पड़ता 15-20 मिनट. इमर्सन में तो बॉयज ने सोचा हुआ है कि हमने सुनना नहीं है. ठीक है मैम, प्लीज सी दीज बॉयज इन इमर्सन. दे आर सो बैठे ऐसे हुए हैं जैसे मेले में बैठे हो. सो व्हाट हैपन्स एट प्यूबर्टी एक्चुअली. ठीक है. तो सबसे पहले हम लेते हैं, दैट इज the deepening of a voice in males. Why there occurs deepening of voice? Yes, Alessandro. Anybody who can tell me कि boys और girls की voice में at puberty there occurs change. Why there is change in Alessandro? Roll number 6. Roll number 6, Alessandro. आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी से. Yes, माइक ऑन करो बेटा. Tell me why there occur change in the voice of males and females. जल्दी से बताओ. हाँ बोलो, पहले बोलो. हाँ जी बेटा. अलेजेंड्रो से हेलो. मैम इनकी आवाज देखना जरा, क्या माइक में क्या प्रॉब्लम है. यस बटलर. हाँ जी बटलर. हु विल टेल मी. यस, इन द लास्ट देयर इज वन बॉय. आ जाओ बेटा. यस बटलर, मिडल रो, लास्ट बॉय. जल्दी से आ जाओ. मैम, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर. वॉइस की बात हम कर रहे हैं बटलर में कि बेटा हम व्हाई द वॉइस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स बिकम डिफरेंट एट प्यूबर्टी. जब छोटे होते हैं, प्यूबर्टी से पहले 7, 8, 9 साल के, तब दोनों की आवाज एक जैसी लगती है. बट प्यूबर्टी के टाइम लड़कों की आवाज भारी हो जाती है. क्यों, व्हाई. मैम बिकॉज हमारा वोकल वॉइस बॉक्स वो डेवलप हो जाता है. डेवलप हो जाता है वोकल कॉर्ड्स को. क्या आप बैठिए बेटा बटलर. एरिस्टोटल. यस एरिस्टोटल, इन द लास्ट देयर इज वन हैंड. आई कैन सी दैट. कम क्विकली, जल्दी से आ जाओ. कंफ्यूजियस बेटा, आपका कैमरा ऑफ हो गया है. वॉइस बॉक्स मेल्स गेट थिक एंड फीमेल्स वॉइस गेट मतलब पतली हो जाती है, क्योंकि उनका वॉइस बॉक्स का साइज मतलब चेंज नहीं होता, लेकिन मेल्स में वो थिक हो जाता है. बिल्कुल, हम वोकल कॉर्ड है ना. बी प्रिसाइज, वेरी गुड. सो लेट्स सी दैट इन मेल्स, दीज आर मेल्स एंड फीमेल्स में दोनों में ये वोकल कॉर्ड्स है. वन पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर देयर. इन मेल्स द वोकल कॉर्ड्स दे बिकम थिक एंड दे बिकम लॉन्ग. ठीक है. ये छोटी है, ये बिफोर थी तो ये छोटी है. जब एट मेच्योरिटी, एट प्यूबर्टी, तो वॉइस जो ये है, द वोकल कॉर्ड्स becomes long and they become thick, due to which they vibrate. ये लिख लो कैसे. The vocal cords become long and thick. The vocal cords become long and thick at puberty, due to which they vibrate slowly. ये sound से connected है बेटा. Due to which, लिख लो बेटा, कैसे हम adolescence को sound से connect करेंगे.
लिख लो, ड्यू टू विच दे वाइब्रेट, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट स्लोली। जब वाइब्रेट धीरे करेंगी तो पर मिनट वाइब्रेशंस कम हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। When the frequency gets decreased, very good, write down. When the frequency gets decreased, the pitch of sound of voice gets decreased. As compared to females. You must have studied this in case of sound. So connect the topic of sound here at puberty. ठीक है जी, चलिए next let's see. So here what you see, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे, if you can see that vocal cords की लेंथ जो है, अगर आप देखेंगे, दिस इज, थोड़ा सा मैं कहां पे वोकल कॉर्ड्स लंबी है, here vocal cords are longer, here vocal cords are shorter. This shows that these are the vocal cords of female. Short, whereas longer vocal cords of males. ठीक है, दिस इज द एक्चुअल थिंग। ठीक है, मेल एंड फीमेल की वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे दिखाई हुई है, एक्चुअल वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे दिखाई हुई है, एंड यू कैन सी हियर वन पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स। इज इट ओके? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज देयर इज इंक्रीज इन हाइट एट प्यूबर्टी। उसके बाद स्टॉप कर जाती है या बहुत स्लो डाउन हो जाती है, बट व्हाई देयर इज इंक्रीज इन हाइट ऑफ द, यू नो, height of the boy or the girl? There is, यहाँ पे लिख लो, more activity of bone cells at growth plates. लिखो, रीजन नहीं आपको पता चलेगा, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ग्रोथ प्लेट्स पे बोन की ग्रोथ है। ठीक है, कहां पे है, वेयर देयर आर ग्रोथ प्लेट्स, इधर ध्यान दो बेटा, इधर डिकार्ड्स बेटा, इधर। सो यू कैन सी हियर, दिस इज द बोन, this is the here. These are the growth plates. ये देखिए, these are the growth plates. यहाँ पे बहुत सारे बोन सेल्स, बहुत सारी बोन का मटेरियल डिपॉजिट कर रहे हैं, ड्यू टू विच द बोन it grows in size. Therefore, there is more activity of bone cells at growth plates, due to which, Descartes, girls,
बातें नहीं बेटा, बातें नहीं. Due to which there is elongation of bones and it causes increase in height. ठीक है. मैम एक्सक्यूज मी. हाँ जी बेटा. मैम ऑफ विच बोन दिस दिस This is, this is the leg bone. शाफ्ट की बोन है ये. विच वन मैम विच वन टीबिया फिबुला और ह्यूमरस. This is tibia. ओके Humerus ओके ओके थैंक यू मैम. ओके. तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ प्लेट्स में जो है वहां पे, वैसे तो सभी में, ह्यूमरस में भी, ये हमने टीबिया दिखाई है, अदरवाइज देयर आर ग्रोथ प्लेट्स इन ह्यूमरस ऑल्सो, राइट. सभी बोन्स में है, सिर्फ टीबिया फिब्यूला में नहीं है, राइट. फीमर में है, ह्यूमरस में है, रेडियो अल्ला में है, टीबिया फिब्यूला में है, सभी में ग्रोथ प्लेट्स है. बटलर गर्ल्स, बटलर इधर बेटा सामने. ठीक है. देन ड्यूरिंग दिस एज देयर इज ग्रोथ इन द मसल्स ऑल्सो. ठीक है. चलिए पहले हम एक बात करते हैं, मसल्स का भी मैं बताती हूँ. देन पिंपल्स स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द फेस. कैसे पिंपल्स कैसे बनते हैं? ऐसे बहुत सारे जो है ना, बड़े बड़े से पिंपल्स निकल आते हैं. बहुत सारे पिंपल्स है तो हम उसको एक्ने बोलते हैं. Why pimples at this age? So remember that puberty. इधर देखो सामने. Everybody here, Danet. Puberty is due to secretion of sex hormones. Sex hormones in male is testosterone. In females, it is estrogen mainly, right? So, acne formation. So, what happens? Why there is, पहली बात आ जाती है, why there is acne on the face, forehead, neck. So ये लिखना, acne on face, forehead, neck. इन्हीं जगह पे क्यों होते हैं? Because these regions have abundant sebaceous glands, oil glands. यहाँ पे बहुत सारी ऑयल ग्लैंड्स है, बाकी जगह इतनी नहीं है, बट दे हैव. यहाँ पे एक्ने क्यों है? बिकॉज दे हैव अबंडेंट सेबेशियस ग्लैंड्स. एट प्यूबर्टी द सेक्स हॉर्मोन्स कॉजेस एक्टिवेशन. जो लिख रहे हैं वो लिख लो, राइट डाउन दिस. एट प्यूबर्टी द सेक्स हॉर्मोन्स कॉजेस activation of oil glands. Activation of oil glands. डेकार्ड्स बेटा आप भी लिख लो, राइट डाउन. कॉपी खोली हुई है आपने, लिख लो. There is activation of oil glands. Second point, these oil glands are present near hair follicles. बेटा लड़कों के फेस पे हेयर है तो ऐसा नहीं कि लड़कियों के नहीं है. गर्ल्स के फेस पे भी हेयर होता है, बट इन गर्ल्स दे हैव थिन हेयर. लड़कों के फेस पे बहुत थिक हेयर है, दैट फॉर्म mustaches and beard. But in girls there are very thin light colored hair. बाल जरूर है. ठीक है. सो सेकेंड पॉइंट है, these glands are present
near hair follicles. So you can see here that this one, ये जो दिख रहा है ये है hair follicle, और उसके साथ में ये वाली these are sebaceous glands. They secrete. थर्ड पॉइंट आ जाइए. Sebaceous glands secrete sebum. Sebaceous glands, sebaceous means oil glands, secrete lot of oil, secrete lot of oil. ठीक है, तो इन sebaceous glands ने बहुत सारा ऑयल सिक्रीट किया. नेक्स्ट पॉइंट, इस ऑयल ने क्या किया? ये ऑयल कहां पे जा रहा है? ये ऑयल जा रहा है हेयर फॉलिकल्स में. द ऑयल ब्लॉक्स द ऑयल, लिख लो डिकार्ड्स, लिख लो. गर्ल्स, इनको कोई परवाह नहीं है, कहती गप्पे मार ले, हम बातें कर ले जितनी में. सीधे होके बैठो. सिट फर्स्ट बेंच. द गर्ल सिट स्ट्रेट. सीधे होके बैठो. हाँ. द ऑयल, it blocks the hair follicles. It blocks the hair follicles. यहाँ पे देखो, ये ऑयल निकला यहां से और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया. ठीक है, this oil blocks the hair follicles. ब्लॉक हो गया. क्रिएट वार्म कंडीशंस, इसने उस जगह को गर्म कर दिया. क्रिएट, कॉमा करके क्रिएट warm conditions. And allow growth of bacteria. यहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर गए. हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर दिया, कंडीशंस वार्म कर दी, एंड प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. दिस बैक्टीरिया क्या करता है? ये देखो, यहां पे ये पस बना रहा है. दिस बैक्टीरिया causes inflammation. Inflammation का मतलब होता है infection. Inflammation, redness, swelling and pus. Which appears in the form of pimple. Which appears in the form of pimple. इस तरह से पिंपल डेवलप होते हैं. ठीक है जी. सो स्किन पे पिंपल्स कैसे होते हैं, बट यहां पे नेक्स्ट एक और स्टार डाल के पॉइंट लिखिए. देयर इज रेगुलेटरी साइकिल्स ऑफ हॉर्मोन्स. There is regulatory cycles of hormones. कभी हार्मोन ज्यादा है, कभी हार्मोन कम है. Therefore pimples slowly disappear and reappear. Pimples disappear जब हार्मोन्स कम हुए तो disappear हो गए, फिर हार्मोन्स बढ़े तो फिर appear हो गए. Therefore pimples slowly disappear and reappear. ठीक है जी. So this is how acne are formed. This is how pimples are formed. तो होता क्या, अभी आप छोटी हो, गर्ल्स है ना, गर्ल्स को थोड़ा ज्यादा, वैसे तो लड़कों को भी आजकल दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर स्किन, है ना. 9, 10, 11, 12, बिकॉज दिस कॉन्टिन्यू फॉर अबाउट अब से लेके 5-6 साल तक ये चलेगा साइकिल. ठीक है, पिंपल्स का बनना, पिंपल्स का गायब होना. तो वी बिकम मोर कॉन्शियस कि हाय ये पिंपल्स, हाय ये पेन हो रही है, ये दर्द हो रही है, ये दूर नहीं हो रही है, हमारा फेस खराब लग रहा है, कभी पिंपल यहाँ निकल आएगा, कभी यहाँ निकल आएगा, कभी यहाँ निकल आएगा. तो हम बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं कि ये वाला मॉइस्चराइजर यूज करें,
है ना, ये वाली ये चीजें, क्लिनजिंग मिल्क यूज करें, ये यूज करें, बट नन ऑफ दीज हैव एनी इफेक्ट, दीज विल गो आउट। इसके लिए हमें गर्ल्स स्पेशली, वैसे तो बॉयज को भी है, बट एवरीबडी शुड लिसन दैट क्लीन योर स्किन, क्योंकि जितनी ज्यादा अगर हम क्लीन नहीं करेंगे स्किन को, तो उतने ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। तो अपने फेस को क्लीन करो, थोड़ा सा आइस का, क्योंकि हमने वार्म कंडीशंस कम देनी है, वार्मथ में बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करेंगे। तो क्या करो, जब क्लीन करते हो रात को, तो ठंडे पानी से, बर्फ का पानी लो और उसको अच्छी तरह से अपने फेस को पहले साबुन से धो और फिर बर्फ के पानी से धो, ताकि गर्म वाला जो वार्म एरियाज है वो कम हो। दैट विल डिक्रीज योर पिंपल्स रादर देन डूइंग बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेके उनको दूर करें। Right? This is my advice and this is scientific advice. Then, next is, there is increase in the body hair. So, how the body hair appears? बेटा इसमें boys में ज्यादा thick hair आते हैं, girls में thin hair होते हैं body पे, right? तो अब जो है, why the body hair, अब चीजें दो तीन चीजें हैं बेटा, मत लिखो बट ध्यान से सुनो कि क्या है, टाइम भी होने वाला है। कि बॉडी हेयर सभी में आ रहे हैं, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। तो हम क्या कहते हैं, द टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स, दे स्टिमुलेट द हेयर फॉलिकल्स टू ग्रो द बॉडी हेयर, राइट? बट इन फीमेल्स देयर आर नो फेशियल हेयर, है ना, बॉयज में ज्यादा थिक हेयर है, बॉयज के फेस पे बियर्ड एंड मुस्टैचेस है, बट फीमेल्स में नहीं है। वाई देयर इज द डिफरेंस? बिकॉज इन फीमेल जो फेशियल हेयर है, दे आर कंट्रोल्ड बाय टेस्टोस्टेरोन। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में टेस्टोस्टेरोन है, बट फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन थोड़ा है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा है। दैट इज वाई in females, because there is less testosterone and more of estrogen. ये point लिखिए सब, everybody note down this point, very important point. In females there are no facial hairs या thin facial hairs, no facial or thin facial hairs as compared to boys, because facial hairs are controlled by testosterone. Facial hairs are controlled by testosterone. तो हम कहेंगे फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं, फीमेल्स में भी है। फेशियल हेयर आर कंट्रोल्ड बाय टेस्टोस्टेरोन। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इन फीमेल्स द ईस्ट्रोजन suppresses the effect of testosterone. In females द ईस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है ना, टेस्टोस्टेरोन तो थोड़ा सा है। इन फीमेल्स द ईस्ट्रोजन suppresses the effect of testosterone. Therefore, in females, facial hair very thin and soft. But बेटा अब एक और चीज, मैम एक्सक्यूज मी, बोलिए बेटा। मैम which gland releases testosterone in females? बेटा एड्रीनल ग्लैंड, तो मेल्स में माइक ऑफ करो बेटा, एक मिनट मैं बताती हूँ। जो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में एड्रीनल ग्लैंड्स है और सेक्स ऑर्गन्स है। मेल्स में, फॉर एग्जांपल मेल्स में है, जो उनकी टेस्टिस है, दे सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, बट जो एड्रीनल ग्लैंड्स है, दे सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन एज वेल एज ईस्ट्रोजन। तो मेल्स आल्सो हैव ईस्ट्रोजन, whereas in females the ovaries secrete estrogen and adrenal glands, they secrete both estrogen and testosterone. Therefore females also have testosterone। और आपने घरों में भी देखा होगा, इन जनरल देखा होगा
कि जब फीमेल्स में, अगर आप ओल्ड लेडीज देखें, है ना, इफ यू हैव सीन, देखना जरा, मुझे बताना किस किसने देखा है। ओल्ड लेडीज अगर देखें हम 70 ईयर्स, 75, 80 ईयर्स, तो उनके यहाँ पे थोड़े थोड़े से बाल आने शुरू हो जाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व? किसने देखा है? जरा हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड्स इफ एनीबडी हैज सीन। यस, कुछ बच्चों ने देखा है ना? क्यों, ऐसा क्यों है? ओल्ड लेडीज में, ओल्ड लेडीज में हम कहते हैं दाढ़ी आनी शुरू हो गई। क्यों? बिकॉज दे हैव लेस ऑफ ईस्ट्रोजन, क्योंकि उनमें मीनोपॉज आ गया है, उनका ईस्ट्रोजन लेवल कम हो गया है, इसलिए वो ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस नहीं कर पा रहा है। दैट इज व्हाई ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन देयर अकर्स फेशियल हेयर। बेटा, आई होप जिन बच्चों ने आज का लेक्चर ध्यान से सुना है उन्हें लाइफ लॉन्ग कुछ चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि ये चीजें तो लाइफ लॉन्ग है। और कुछ ऐसे निखित बच्चे हैं जिन्होंने सोचा हुआ है हमने पढ़ना ही नहीं है, इमर्सन द होल सेक्शन, ठीक है, तो वो कहते थे हमने तो पढ़ना ही नहीं है, हमारे तो कोई मतलब का ही नहीं है। एंड सम स्टूडेंट्स ऑफ डेकार्ड्स आल्सो, दे डोंट वांट टू स्टडी द फर्स्ट बेंच गर्ल्स, है ना? मैम एक्सक्यूज मी, हो गया मैम। देन व्हाई एड्रेनलिन ग्लैंड इज नॉट इंक्लूडेड इन गोनाड्स? गोनाड्स का मतलब सिर्फ ऑर्गन्स नहीं है, गोनाड्स मीन गैमीट्स। Gonads means these are the sex organs which produce eggs and sperm. Adrenal glands produce small amount of sex hormones, not the gametes and sperms. Is it okay? ठीक है। और दूसरी चीज, Am I wondering if adrenal produces sex hormone, then why it is not included in gonads? मैं वही आपको बता रही हूँ। गोनाड्स क्या है? हाउ कैन यू डिफाइन गोनाड्स? आप बताइए। What are gonads? When these are the endocrine glands that release sex hormones. नहीं बेटा, कभी भी गोनाड्स को हम ऐसे नहीं एक्सप्लेन करते। What are gonads? These are the structures which form gametes. ठीक है? Okay. और एड्रीनल ग्लैंड्स का फंक्शन सिर्फ आपने क्या पढ़ा है? ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेक्स हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं, बट आपने क्या पढ़ा है कि ये एड्रीनेलिन सिक्रीट कर रहा है। यस और नो? Yes. है ना? तो मेन हार्मोन कौन सा? एड्रीनेलिन है। थोड़ा सा सेक्स हार्मोन ही बना रहे, थोड़े थोड़े, बहुत ज्यादा नहीं। अगर वो नहीं भी बनाएंगे तब भी हमारी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर एड्रीनेलिन नहीं बनाएंगे तो अवर बॉडी इज अफेक्टेड। ओके Okay. ठीक है जी। तो बट आई एम सेइंग दैट इट इज द टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स, which helps in development of secondary sexual characters. Secondary sexual characters सबसे पहले हमने बताया voice change. Voice change क्यों होती है? Due to testosterone. The males vocal cords, they become long and they become thick. There is development of the voice box called as Adam's apple. First thing. Second thing, there is more development of facial hair in boys because testosterone controls formation of facial hairs. In females, estrogen suppresses the effect of testosterone. Third is pimples in both boys and girls. Fourth thing, increase in height due to more growth of growth plates of bones. Then fifth is there is more growth of muscles. Not increase in the number of muscles, but there is increase in the size of muscles, which are also under the influence of sex hormones. And last is in females, there is start of menstrual cycle. ठीक है? Menstrual cycle हम next time पढ़ेंगे, and there is nothing to laugh in that. जैसे आपकी डाइजेशन होती है, जैसे आपकी एक्सक्रीशन होती है, जैसे आपका यूरिन बनता है, जैसे आपकी फीसेस बनती है, वैसे ही गैमीट्स बनते हैं, वैसे ही फीमेल्स में, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट पावर टू गिव बर्थ, मेल्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू गिव बर्थ टू द यंग वंस। वो कुछ भी कर ले, उनकी बॉडी बनी ही नहीं हुई है कि वो एक बच्चे को डेवलप कर सके। इट इज द फीमेल्स बॉडी
So we will see next time how the female body is different from male's body and be open to everything. ठीक है? ऐसे हाय मैम क्या बता रही है, हाय मैम ने ये बॉडी हेयर दिखा दिए, है ना? दिस इज अ नॉर्मल थिंग, राइट? दिस इज अ नॉर्मल पोस्चर, दिस इज अ नॉर्मल थिंग. ठीक है? तो बी ओपन, समझो चीजों को, वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो क्या करते हो, अगर मैं नहीं समझाऊंगी तो क्या करोगे, नेट से जाके देखोगे 3600 गलत वलत चीजें आएंगी. ठीक है? तो एक टीचर से समझो ये चीजें, जो नहीं, कोई कुछ भी तुम्हारे माइंड में कुछ भी है, एंड आई विल गिव अ स्पेशल लेक्चर अगली बार. आई सपोज अगर इफ द टीचर अलाउज मी कि आई विल टेक अ लॉन्ग लेक्चर, ताकि मैं आपको थोड़ा सा डिजीजेस के बारे में, पीसीओडी के बारे में, गर्ल्स में मेन प्रॉब्लम आजकल आ रही है पीसीओडी के प्रॉब्लम. ठीक है? समझो, उस पे काम करो. आई विल टेल यू एक्सरसाइजेस, आई विल टेल यू द डाइट यू शुड टेक, because this is very important thing. We will discuss it next time. ठीक है? Okay बेटा, bye bye. Thank you teachers.